Okay, so today we are going to study chapter 2 of public speaking, that is stage fright. So let's see what is stage fright. So we have three definitions from three different perspectives. So according to the dictionary definition, according to the Merriam-Webster defines stage fright as the nervousness that you feel at appearing before an audience. So, according to Merriam-Webster definition of stage fright, it is actually the nervousness that a person feels before appearing to the audience, before moving and delivering the lecture and interacting with the people. So, the nervousness, the physical symptoms, the psychological symptoms that a person feels before appearing to the audience, that symptoms are considered as the symptoms of stage fright. The next one is psychological definition. So obviously psychological, that is something that is related to the cognitive process, the interpretation, the problems in the interpretation of the message and so on. So let's see what is the psychological definition. So according to the psychological definition, we characterize stage fright as the part of phobia. We consider that phobia as type that is called glossophobia. So what is glossophobia? The fear related to public speaking is one of the very common found phobias and is believed to be affecting up to 3 by 4% of the population. This ranges from slight nervousness to extreme panic and fear. So, according to the psychological definition, stage fright is basically considered as a glossophobia, जहाँ पे जो ऑडियंस है देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस जहाँ पे इंसान फंस जाता है और उसके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ओवरलैप करने लग जाते हैं और इतना उस इंसान को नर्वस कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। वो प्रॉपरली जो कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है, जो डिलीवर करना चाह रहा होता है, वो नहीं कर पाता, राइट? सो दिस इज़ द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। और ये जो टेंडेंसीज होती हैं 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन में देखी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स इंसान फेस करता है बिफोर अपेयरिंग टू द ऑडियंस, ये इतना रेयर नहीं है, ये काफ़ी हद तक कॉमन है। सब लोग इन सिम्टम्स से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गुजर रहे होते हैं, ठीक है? So this ranges from slight nervousness. अगर आपको slightly, if you're nervous at initially before delivering the lecture or interacting with the audience, with time on that specific platform आपकी nervousness आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना start हो जाती है जब आप उस स्टेज से उस प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल होने लग जाते हो ऑडियंस के साथ। तो ये फीलिंग आपकी साइकोलॉजिकल रेसिंग थॉट्स और आपके फिजिकल सिम्टम्स या आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इन सिवियर केसेस ये सिम्टम्स टाइम के साथ भी नॉर्मल नहीं होते। टिल फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ये सिमिलर रहते हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट द इंटरेक्शन विद द ऑडियंस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नॉइज चलती रहती है, जिसकी वजह से प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो सकती, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, राइट? सो दिस इज द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट इटसेल्फ नाम से पता चल रहा है कि the fear that is related to stage is called stage fright, right? So now comes the professional definition. What is the professional definitions? So nervousness that one starts feeling when due for speaking event and resultant fear is in essence in stage fright. Once one is on the stage, usually it starts diminishing, as we have discussed earlier, that once a person reach the platform जहाँ उसने interaction करनी है with time, ये आहिस्ता आहिस्ता से ये symptoms eliminate ख़त्म होना start हो जाते हैं, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल डेफिनेशन ये वो सिम्टम्स होते हैं जो स्टार्ट करते हुए स्पीच इंटरेक्शन स्टार्ट करते हुए आप लोग फेस करते हो। सो ये वो सिम्टम्स हुए जो कि बिफोर डिलीवरी ऑफ स्पीच, बिफोर इंटरेक्शन एंड वाइल स्टार्टिंग द इंटरेक्शन आप फेस करते हो, बट विद द टाइम ये सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, आइदर दे आर फिजिकल सिम्टम्स और दे आर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। So these are three different type of definitions through which we can explain stage fright. The first one is the dictionary definition. The second one is from psychological perspective, and the last one is from the professional perspective. So why me? We always ask this question that why always me? We usually think that we are
द मोस्ट लो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, जितने हमारे सर्कल में हम लोगों को जानते हैं उसमें से सबसे कम कॉन्फिडेंस हम में, ये अक्सर ही हम अपने आप को मैसेज डिलीवर करते हैं। देन वी आस्क दिस क्वेश्चन दैट व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। You're not the only one. Contracted with up to 75% of the population, according to one study, suffers stage fright, and many of them are top business professionals, performers, and young people like you. So, this is the situation. These symptoms are quite normal in 75% of the individual, 75% of the population in the world. तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। हम इसको थ्रू एफर्ट्स, थ्रू प्रैक्टिस इन सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। हम इन पे डोमिनेट हो सकते हैं, राइट? हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज़ पॉसिबल। विद प्रैक्टिस आप इस चीज़ को होल्ड कर सकते हो, कमांड आप कर सकते हो इस पे। आप इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, राइट? सो चेरिश दिस इंफॉर्मेशन दैट यू आर इन अ वेरी गुड कंपनी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट जो भी आपके साथ ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग या ड्यूरिंग इन कम्युनिटी का, जब आप एक ग्रुप में कम्युनिकेट करते हो, राइट? जब आपकी सोशल गैदरिंग्स होती हैं तो आप उसमें अपने आप को ये मैसेज दिया करें बार बार कि यू आर नॉट द ओनली वन। ये सिम्टम्स, ये सिचुएशन हर एक के साथ कहीं ना कहीं लाइफ में हो रही होती है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर कंट्रोल करना आ जाता है और कुछ लोग स्टिल उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाते, वो जस्ट उन सिम्टम्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं सोचते कि हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो एट द एंड होता क्या है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, वो स्टटरिंग स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी शेक होना स्टार्ट हो जाती है, ट्रैम्बलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, रेसिंग थॉट्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने चीज़ें सोची होती हैं, जो कम्युनिकेशन करनी होती है, वो बुरी तरह से इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, राइट? सो this is something very normal and we can control it with efforts and with practice. Now, what are the symptoms? We have already discussed the major symptoms. Let's see what else are the part of the symptoms in stage fright. So, first one is dry mouth. This is a very common symptom. Most of the people do feel this symptom. Sweaty hands, nausea, shaky knees, trembling lips, fast pulse, give me a hand, cold hands, tight throat. So these are all the symptoms that we can face in during the interaction, during the communication process, during the stage performance, right? So अब ऐसा नहीं है कि ये सब symptoms हर individual face करे। हो सकता है कुछ लोगों में इनमें से कुछ symptom हो, कुछ वैसा ना फेस करें, कुछ और। तो ये मिक्स सिम्टम्स हैं, लेकिन यही वो सिम्टम्स होते हैं जो कि एंड रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्राइटनिंग और फोबिया, ग्लॉसोफोबिया, ये वो प्रोबेबल सिम्टम्स हैं जो हर बंदा फेस करता है। कुछ लोग इनमें से 3 से 4 करते हैं और कुछ लोग इनमें से 2 से 3 करते हैं, लेकिन करते सब इन्हीं इसी कैटेगरी में से हैं। So, any out of the ordinary outward or inward feeling or manifestation of a feeling occurring before or during the beginning of a public speaking engagement. So, these are those symptoms या तो आप इंटरेक्शन से पहले ही फेस करते हो या इंटरेक्शन के बीच में ये फेस करते हो, और अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सवेयर है, आपका कंट्रोल नहीं है, आप उन चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं है, तो टिल एंड जब तक आप इंटरेक्शन ख़त्म नहीं करते, ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, ये चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे एक पुअर इम्पैक्ट पड़ता है। सो दीज आर द सिम्टम्स, बट विद प्रैक्टिस, विद कोपिंग मैकेनिज्म्स हम इन पे कंट्रोल, ऑब्वियसली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें कोपिंग मैकेनिज्म आ जाए, हमें कंट्रोल करना आ जाए, तो हम हर सिचुएशन को इजीली फेस कर सकते हैं, राइट? चाहे हमारे पास सामने कोई जूनियर्स हो या हमारे सामने कोई सीनियर्स हो या बहुत ज़्यादा सीनियर्स हो, अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग है, और अगेन हर कोपिंग मैकेनिज्म हर इंडिविजुअल के लिए वर्क नहीं करता। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि उसके लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म बेस्ट है वो उसको अपने साथ उसको प्रैक्टिस में लाए और उसको बार बार इम्प्लीमेंट करे, और वो सिचुएशंस को उसके अकॉर्डिंगली टैकल करने की कोशिश करे। अगर आप कहें कि हर एक मैकेनिज्म हर इंडिविजुअल के लिए वर्क करता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? ओके,
So can this be cured? Of course, this can be cured. It is not a very difficult task जिस पे हम अपना command नहीं कर सकते. With practice, with control, with practice, with command, with coping strategies, you can easily cure. You're not supposed to cure that, but you have to control. Cure is the second step, right? जब आपको control करना properly आ जाएगा, then you will move towards the curing process. कि आप उन symptoms को ख़त्म ही कर दो अपने अंदर से with प्रैक्टिस विद कोपिंग स्ट्रैटेजीज. एक टाइम तक जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ये सिम्टम्स खुद ब खुद ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे आप में से. So stage fright affects everyone in different ways. Some people may have little to no anxiety, others may find it nightmare. So obviously इट्स अ नॉर्मल थिंग. अगर एक क्लास है डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे उसमें होते हैं, हाई एसओएस के, लो एसओएस के, मिडिल क्लास होते हैं, तो वो क्लासेस हर एक एलिमेंट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल से अटैच होता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तो जो एलीट क्लास के बच्चे होते हैं यूजुअली ये चीज़ एज्यूम की जाती है क्योंकि लाइक दे हैव ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू द पीपल, द स्टूडेंट्स ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. उनको ऐसा लगता है कि वो लो कॉन्फिडेंट है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको ज़्यादा आगे रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड की जाएंगे, उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलेंगे, और जब उनके पास आ जाता है तो लाइक दे आर इन अ शॉकिंग स्टेट क्योंकि अब आ गया है, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट, राइट. सो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि पीछे रोल प्ले करते हैं. बट अगेन हर इंडिविजुअल के लिए द सिम्टम्स एंड द लेवल ऑफ सिम्टम्स आर डिफरेंट. कुछ बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील करते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे जो कि टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, और कुछ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इटसेल्फ. सो इट वेरीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. वन कैन हैव हाई फ्रीक्वेंसी, then it diminishes to almost nothing, right? So it depends on the individual कि उसकी किस लेवल की एंजाइटी है और उसका कितना कमांड और होल्ड है. Good news, it never leaves its occupancy in your mind. It means that ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स हैं. जब आपकी वो सिचुएशन खत्म होती है तो ये सिम्टम्स और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं. बट द बैड थिंग एट द सेम टाइम इज कि आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उस पे आप पे एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रह जाता है कि ड्यू टू दिस सिम्टम्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया. जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी, आई वॉज अनेबल टू डिलीवर दैट प्रॉपरली, राइट. सो उसकी वजह से आपकी नेक्स्ट प्लान या आपके नेक्स्ट इंटरेक्शन पे भी उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आप लो कॉन्फिडेंट हो जाते हो, लो मोटिवेटेड हो जाते हो, जिसकी वजह से यू थिंक लाइक द वे कि नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा होगा, मैं नहीं पाऊंगा, राइट. तो द गुड न्यूज़ इज दैट कि विद आफ्टर द टाइम ऑफ इंटरेक्शन ये सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन इनका बैड इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म्स में, लॉन्ग रन में रहता है. So you can learn to control and use it to aid you as a ally in your public speaking endeavors, right? So अब हमने इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें डिस्कस की रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टेज फ्राइट, बट इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, राइट. अब देखते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं जिसका हम, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा एंशियस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, एंजाइटी का शिकार हुए होते हैं, सो हमें उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी पे दिखते नहीं है. बट वंस आपकी वो जब सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो ये चीज़ें आप खुद रियलाइज़ करते हो कि ओके एट द टाइम ऑफ स्टेज फ्राइट मुझे ये सिम्टम्स हो रहे थे. दीज वर द फिजिकल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट आई वॉज फेसिंग एट द टाइम. सो शार्पन योर रिफ्लेक्सेस. अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, इफ यू आर नॉर्मल, योर इमोशंस आर नॉर्मल, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू आर quite normal and comfortable at different places, right, with your friends, in your family, in social gatherings, तो आप कभी अपने रिफ्लेक्सेस को उतने स्ट्रांगली फील नहीं करते. आपकी हार्ट बीट, आपकी पल्स रेट, आपकी जो स्वेटिंग है, ट्रम्बलिंग है, ये चीज़ें आप फेस नहीं करते, फील भी नहीं करते. लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टेज फाइट आपको एक एक रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हाई साउंड हो रहा होता है. आपको अपनी हार्ट बीट खुद फील हो रही होती है कि आपका हार्ट कितनी तेज़ी से धड़क रहा है, ठीक है. आपकी टांगे कांप रही हैं, और वो टांगे जो कांप रही हैं वो आप फील करते हो, ठीक है. तो आपके रिफ्लेक्सेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं. वो इतने ज़्यादा शार्प हो जाते हैं कि आप अपने बॉडी में एक एक मूवमेंट और जो जो चीज़ें हो रही हैं
वो आप एक एक चीज़ को अलग अलग हर प्रॉपर वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और उसको फील करते हो प्रॉपरली, जिसकी वजह से आप ज़्यादा नर्वस होना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही होती थी रैपिड होती हैं, कि इसकी वजह से यू फील दैट यू आर इन द स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एक्यूरेटली, राइट? सो नेक्स्ट वन इज बूस्ट एनर्जी। नाउ जब आप एंशियस स्टेज में होते हो तो आपने ये चीज़ फील की होगी कि आपको लगता है दैट यू आर हाई, आप नॉर्मल स्टेट में नहीं हो, यू आर वेरी हाई। आप बोलते बहुत तेज़ी तेज़ी से, आपकी रेसिंग थॉट्स होते हो, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है एट द सेम टाइम। Now glitters eye, you have a spark in your eyes at the time when you are in interaction with the audience. Shaded cheeks, आपके गाल लाल हो जाते हैं, ठीक है, आप घबरा जाते हो, आपको अपना आप गर्म फील होने लग जाता है, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, आपका फेस गर्म हो जाता है. So these are the symptoms, the physical symptoms and the internal reflexes as well जो आप उस टाइम फील करते हो. Brings improvement in your posture, मेक्स योर कॉन्शियस ऑफ ब्रीथिंग, आपको अपनी सांस भी लेना आपको फील हो रहा होता है दैट यू आर हैवीली ब्रीथिंग, राइट? एंड इट ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन योर पोस्चर एज वेल, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अपनी आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, उसका पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, अलर्ट पोजिशन में आप आ जाते हो. दीज आर द सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स, जो कि अगर आप गौर करें तो ये सब इम्प्रूवमेंट्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंजाइटी एंड स्टेज फियर. बट ये हम फोकस इसलिए इन पे नहीं करते, आई मीन इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है भी नहीं, ये आपके इतने हैवी और इतने शार्प रिफ्लेक्सेस होते हैं कि खुद आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली फील हो रही होती है, ठीक है? लेकिन इन चीज़ों की वजह से ही आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ओके मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, मेरे हाथ जो है स्वेटी हो रहे हैं, मेरी टांगें बहुत ज़्यादा ट्रैम्बलिंग हो रही है. So that is why I am unable to deliver what I am supposed to. I am unable to interact with the audience, right? So these are the symptoms जिसकी वजह से you feel like that you are in an ancient state, extreme ancient state.